Hey guys, welcome to HR with Sanchita. First of all, just like, share, and subscribe to my channel to access all my videos and the videos that I would be uploading in the future. So, today I would be discussing collective bargaining and behavioral theories of labor negotiations, which is really important and which I have not covered in the classes that I've taken on various platforms as well as the YouTube channel. And one more good news I want to give you is that I would be soon launching a free course for all of you over YouTube so that it can be accessed by everyone, right? Because I got a few emails that ma'am, we cannot afford paid subscriptions, we cannot afford books. So I, being a teacher, it's my responsibility, right, to do something for the society as well. So that is why I thought of launching a free course on YouTube for Code 55, and until June, by taking classes of 1 hour each every day, I think like most of the syllabus, I think 100% of the syllabus would be covered. And right now I would not be taking laws until I get the syllabus from the UGC net for the next June, because I think there would be updation in the syllabus as the new labor legislations would be added. So for that I would discuss when the new syllabus come. But as of now, I would be discussing OB, HR, labor welfare, which of course would be in the new syllabus as well, because the updations would be in the labor legislations. Okay. So, and also spread the word with your friends that I would be launching the free course, the details of which I would be providing you in the next 2-3 days. Okay. So today's topic is collective bargaining. Okay. So yes, collective bargaining. So first of all, there are a lot of questions that have been asked previously in the exams, that who introduced the concept of collective bargaining and in which book collective bargaining was introduced. So Sidney and Beatrice Webb introduced this concept in their book Industrial Democracy. So even if it is asked that who has written the book Industrial Democracy, so it would be Sidney and Beatrice Webb, and they are linked with collective bargaining. Okay, so the classical model of collective bargaining has been given by Sidney and Beatrice Webb in their book Industrial Democracy, right? So see, what is collective bargaining? So collective bargaining is first of all a bipartite process or a bipartite process wherein two parties are involved, and those two parties are, right, so which management and the employees, okay, or the labor or their trade unions and the employers. Okay. So in the collective bargaining process, both the parties generally negotiate matters related to the terms of employment. So obviously if there would be bargaining would be for some matters, right, related to their employment, related to the wages, right? So both the parties, like the labor and the management, they bargain. Then, industrial disputes between the employers and employees can be settled by discussion and negotiation between the both. So rather than fighting, the industrial disputes can also be settled by discussion and negotiation rather than filing cases for each other. So we can discuss and negotiate related to the issues. Okay. So then, these are some of the definitions, some of the important definitions I can say, because they are a bundle of definitions for collective bargaining, which I would be providing in the future also through the MCQs. But these are the most important ones which I have put in here. So according to Edwin B. Flippo, collective bargaining is a process in which the representatives of a labor organization and the representatives of business organization. See, the labor, I told you it's a bipartite process, so it involves the labor and the business. So they meet and attempt to negotiate a contract or agreement which specifies the nature of employee-employer union relationship. Okay, so this is one definition. And then according to Dale Yoder, collective bargaining is a term used to describe a situation in which the essential conditions of employment are determined by a bargaining process. So you know how you can remember these definitions. So for example, Dale Yoder ने क्या कहा है? So इसने essential conditions of employment के बारे में कहा है, ठीक है? So you can remember that ये वाला जो था, that was related to Dale Yoder, and you can just identify more key points as well from this definition. Process undertaken by representatives of a group workers on one hand and the employees on the other hand. Okay.
So yes, definition is easy. Then this is the most important definition that has been given by Professor Butler. Okay, so it is a collective bargaining has been viewed as a process of social change. So it can be asked that who has viewed collective bargaining as a process of social change. So the answer would be Professor Butler. Then a peace treaty between two parties, a system of industrial jurisprudence. So what is jurisprudence? It is like related to law. Okay, so it is a system of industrial jurisprudence. So next thing, yes, this is the most important part of today's session, that is the behavioral theory of labor negotiations. So who has given this theory? Richard Walton and McKersey. So you need to remember these both people, that they have given the behavioral theory of labor negotiations. So according to them, collective bargaining has 4 sub processes. अब इसके 4 sub processes हैं, which are also called 4 processes of collective bargaining. Okay, so if someone asks you who has given distributive, integrative, attitudinal and inter-organizational bargaining, then your answer would be Richard Walton and McKersey. Okay, so these are the 4 sub processes that they have given. So first one is distributive bargaining, and it is also called fixed pie. Then next is integrative, then is attitudinal, and then is intra-organizational. Now let's study these in depth. So distributive bargaining. So it is also called fixed pie, and both the parties are competitive. One party gains at the loss of the other. अब इसमें बच्चों ये है कि बहुत कंपटीशन करते हैं. जैसे हमें कुछ केक का पाए है, ठीक है, तो इनका जैसे फॉर एग्जांपल एक केक है, ठीक है, तो उसमें केक के हिस्से हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दो पार्टीज लड़ रही हैं. आई टोल्ड यू दैट इट्स अ बाइपार्टीट प्रोसेस. तो लेबर चाहेगा कि उसको मैक्सिमम केक का हिस्सा मिले, ठीक है, और मैनेजमेंट चाहेगा उसे मैक्सिमम केक का हिस्सा मिले, ठीक है. सो दैट इज वाई, सो वन पार्टी गेन्स एट द लॉस ऑफ द अदर. अब अगर मैनेजमेंट को ज्यादा केक मिलेगा तो क्या होगा, लेबर का लॉस होगा. अगर लेबर को ज्यादा केक का हिस्सा मिलेगा तो किसका लॉस होगा, मैनेजमेंट का लॉस होगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट को भी मिल सकता था. सो दैट इज वाई वन पार्टी गेन्स एट द लॉस ऑफ द अदर. सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. और इसमें दोनों पार्टीज खूब कॉम्पिटिटिव रहती हैं ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए. ओके, Then comes the integrative bargaining. So इसमें क्या होता है, इसमें in this type both the parties gain and at least no party loses. इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी गेन करती हैं, कोई भी पार्टी लूज नहीं करता है, ठीक है. सो इट इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव बार्गेनिंग. अब इंटीग्रेटिव में क्या होगा कि चलो अब केक है, चलो आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके कर लिया. इंटीग्रेटिव की तू भी गेन कर, मैं भी गेन कर रहा हूँ, राइट. सो दैट इज इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग. Then comes the attitudinal restructuring. अब आपने इवन अपनी पर्सनल लाइफ में भी गाइस देखा होगा, कई बार गलत फहमियां हो जाती हैं, ठीक है, आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में. तो ऐसे ही लेबर और मैनेजमेंट के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलत फहमियां हो सकती हैं, ठीक है. सो एटीट्यूडनल रीस्ट्रक्चरिंग क्या करता है, ये एटीट्यूड्स को एक दूसरे के प्रति शेप करता है या रीशेप करता है, या तो नए एटीट्यूड बनाएगा, ठीक है, या रीशेप करेगा. सो इट एम्स एट क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट. अब देखो, अगर ट्रस्ट रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स कम होंगे, ठीक है. सो यही एटीट्यूडनल रीस्ट्रक्चरिंग का मोटो होता है कि कोऑपरेशन बढ़े, ट्रस्ट बढ़े, ठीक है. And it involves shaping and reshaping of attitudes like trust, distrust, friendliness, hostility between the parties. अब अगर एक दूसरे में distrust है तो क्या होगा, ट्रस्ट बनाएंगे. हॉस्टिलिटी है एक दूसरे के प्रति लेबर और मैनेजमेंट को, तो फ्रेंडलीनेस को इंक्रीज किया जाएगा. सो दैट इज एटीट्यूडिनल रीस्ट्रक्चरिंग. मतलब एटीट्यूड को, लेबर और मैनेजमेंट के एटीट्यूड को हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं पॉजिटिव साइड पर. ओके, देन कम्स द इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग. अब देखिए, जब भी बार्गेनिंग होती है, फॉर एग्जांपल आपके 2 ग्रुप्स थे, ठीक है, आपके 2 ग्रुप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 बच्चे एक ग्रुप में हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि क्लास बंक करनी है, और एक 5 बच्चे दूसरे ग्रुप में हैं, वो सपोर्ट करें कि क्लास नहीं बंक करनी है. अब
आप 5, अब जैसे जो 5 बच्चों का ग्रुप है जो बंक को सपोर्ट कर रहे हैं, उस ग्रुप में से भी कोई लोग हो सकते हैं जो 2 थॉट्स हो, जिनके सपोर्ट करना भी है और नहीं भी करना है, ठीक है। तो पहले एक बात बताओ, आप दोनों आपस में लड़ोगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, कि पहले अपने ग्रुप ए अपने इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसमें इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग टेक्स प्लेस विद इन अ ट्रेड यूनियन। अब देखो हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग में कौन होता है, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट बार्गेन करते हैं, बट ऐसा हो सकता है बच्चों कि ट्रेड यूनियन के विद इन भी डिफरेंट व्यूज हो आपस में मेंबर्स के, ठीक है, या मैनेजमेंट के विद इन भी डिफरेंट व्यूज हो मैनेजमेंट के मेंबर्स के। तो पहले तुम अपने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो रिजॉल्व करो। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसमैच ऑफ ओपिनियन हो रहा है विद इन द ट्रेड यूनियन या विद इन द मैनेजमेंट, तो आपस में पहले वो रिजॉल्व कीजिए, तभी तो तुम आपस में ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट खड़े हो पाएंगे एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। या एक दूसरे अगर पता है क्लैरिटी नहीं होगी, अगर ट्रेड यूनियन में एबीसी मेंबर्स हैं और एबीसी मेंबर्स तीनों के डिफरेंट ओपिनियंस है, तो तुम सामने वाले से, दूसरी पार्टी से कैसे आर्ग्यू करोगे या कैसे नेगोशिएट करोगे। तो पहले अपने अंदर मतलब विद इन द ट्रेड यूनियन अपनी चीजें रिजॉल्व करो और एक सॉल्यूशन पे आओ। या मैनेजमेंट विद इन सारे जो मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट है उनके डिफरेंट ओपिनियंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पहले सारा मैनेजमेंट एक ओपिनियन पे आए, तभी तो ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट आपस में बार्गेन करेंगे, ठीक है। सो दैट इज इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। देन टाइप्स, हाँ ये कुछ और टाइप्स हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाना चाहती थी। सो दैट इज वन इज कंसेशनरी बार्गेनिंग ऑफन आस्क्ड इन द एग्जाम। अब देखिए बार्गेनिंग में जनरली क्या होता है बच्चों, बार्गेनिंग में होता है कि जो लेबर है वो गेन करते हैं, ठीक है। तो कि हाँ चलो अब तुम्हें नया सैलरी स्ट्रक्चर होगा, कुछ बोनस मिलेगा। तो कंसेशनरी बार्गेनिंग में ना थोड़ा ऑपोजिट होता है। सो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग समथिंग इज गिवन बैक। अब यहाँ का जो कीवर्ड है दैट इज गिवन बैक, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग समथिंग इज गिवन बैक टू द मैनेजमेंट विच वाज गेन्ड इन द प्रीवियस बार्गेनिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पिछली जो कलेक्टिव बार्गेनिंग हुई थी उसमें हमें 5% बोनस मिला। तो अब हम क्या बोलेंगे, चलिए अब हम इसे, अब ये वाला जो रूल है कि हर साल 5% बोनस मिलना है, हम ये वापस कर देते हैं, अब आपको अगले साल बोनस नहीं देना है, ठीक है। या हमें ऐसे मिला कि चलो 5 डेज वर्किंग हो गया, पहले 6 डेज था 5 डेज था, अब क्या ये वापस 6 डेज हो जाएगा, ठीक है। सो द लेबर इज गिविंग समथिंग बैक to the management which it had gained in the previous bargaining. So that is concessionary bargaining. Then comes the composite bargaining. Now in this type of bargaining labor also demands equity in work norms, employment levels etc. अब देखिए जनरली हम सैलरी, वर्किंग कंडीशंस वगैरह के लिए बार्गेन करते हैं, ठीक है, नेगोशिएट करते हैं अपने एम्प्लॉयर से। सो कॉम्पोजिट में क्या होता है, अब यहाँ पे ना ये एक लेवल और फॉरवर्ड चले जाते हैं कि अब ये इक्विटी भी डिमांड करने लग जाते हैं, ठीक है। नहीं तो इक्विटी, वर्किंग कंडीशंस इशू रहते हैं, जो जनरल इश्यूज हैं हमारे नेगोशिएशन के, सैलरी, बोनस, ठीक है, लीव्स, सो ये सब जनरल इश्यूज है। बट यहाँ पे हम एक स्टेप ये तो करेंगे ही करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ गए, ये तो करेंगे ही, जो सैलरी और ये सब तो जनरल इश्यूज है, बट यहाँ पे हम आगे बढ़ के इक्विटी भी मांगने लग गए हैं, ठीक है। हमें इक्विटी चाहिए, इक्विटी हमें पूरी पार्टिसिपेशन चाहिए, इक्विटी चाहिए वर्क नॉर्म्स बनाने में। सो यहाँ पे इक्विटी आ गया है कीवर्ड। सो दैट इज कॉम्पोजिट बार्गेनिंग। देन कम्स द कोएलिशन बार्गेनिंग। अब कोएलिशन बार्गेनिंग में क्या है, the main feature of this type of bargaining is that more than यहाँ पे शायद ये मेरा शायद I think फोटो आ रहा है इधर। so more than one employer negotiates with the union, ठीक है। यहाँ पे more than one, जस्ट अंडरस्टैंड इट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक, और यहाँ पे एम्प्लॉयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आते हैं 2-3 एम्प्लॉयर आ जाते हैं, तभी उनका कोएलिशन बना लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर्स की बात हो रही है, नॉट ऑफ एम्प्लॉयज। सो मोर देन वन एम्प्लॉयर्स कम टुगेदर, तभी तो इसे कोएलिशन कहा गया है ना, कि एक से ज्यादा एम्प्लॉयर आ गए और फिर वो यूनियन के, ट्रेड यूनियन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। सो ये जनरली बच्चे इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ना, जिसमें काफी सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, काफी सारी फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो सारे टेक्सटाइल वाले 2-4 इकट्ठे होके आ गए और फिर ट्रेड यूनियन से नेगोशिएट कर रहे हैं। सो कोएलिशन बार्गेनिंग, ठीक है। यहाँ पे याद रखना मोर देन वन एम्प्लॉयर।
यस, एक और चीज इंपॉर्टेंट थी, चैम्बरलेन एंड कुहन थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें इसने ये 3 थ्योरीज दी हैं, मार्केटिंग थ्योरी, गवर्नमेंटल थ्योरी एंड मैनेजरियल थ्योरी। अब इसमें ना ये इन थ्योरीज के थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिफरेंट व्यू पॉइंट से या डिफरेंट कंटेक्स्ट से व्यू कर रहे हैं। अब जैसे मार्केटिंग थ्योरी में क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज सीन एज एन इकोनॉमिक प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक इकोनॉमिक प्रोसेस बोला गया है। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि जैसे लेबर क्या करता है, लेबर हाई प्राइस डिमांड करता है अपने एफर्ट्स के, तो ये मार्केटिंग थ्योरी में होता है, ठीक है। कि जैसे अब देखिए लेबर काम करता है तो लेबर को कुछ पैसे चाहिए होते हैं ना काम करने के, तो इसमें मार्केटिंग थ्योरी में क्या होगा कि वो हाई से हाई प्राइस चाहेगा कि उसे अपने एफर्ट्स डालने के या उसे अपनी लेबर का हाई से हाई प्राइस मिले, ठीक है। सो दैट इज मार्केटिंग थ्योरी। सो दैट इज वाई यहाँ पे हाई प्राइस की बात हो रही है, इसीलिए इसे इकोनॉमिक प्रोसेस कहा गया है, ओके। Then comes the governmental theory. Collective bargaining has a political character. अब इसमें ना governmental theory में क्या है कि जो मैनेजमेंट है उसे स्टेट सोच लिया गया है कि मैनेजमेंट हो गया स्टेट, ठीक है, और लेबर्स हो गए सारे जो मेंबर्स हैं। अब आप बताइए, अब स्टेट के मेंबर्स के पास पावर्स होती है ना। अब जो भी आप लोग किसी स्टेट के मेंबर्स ही होंगे, कोई हिमाचल का होगा, कोई उत्तराखंड का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई बिहार का होगा, कोई छत्तीसगढ़ का होगा, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, आप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, आपके पास भी पावर है ना, स्टेट के मेंबर्स के पास भी पावर है और स्टेट के पास तो पावर है ही। सो इसमें क्या कहा गया कि स्टेट क्या है, स्टेट मैनेजमेंट है और बाकी उसके मेंबर्स क्या है, वो लेबर है या ट्रेड यूनियंस है, ठीक है। तो ये दोनों के पास पावर्स है, ठीक है। तो ये मिलके चीजें मतलब कि चीजें बनाते हैं, वर्किंग कंडीशंस डिसाइड करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो दैट इज वाई इसे गवर्नमेंटल थ्योरी कहा गया है, ठीक है। देन मैनेजरियल थ्योरी में क्या क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज व्यूड एज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का और हमारे रिलेशंस का मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसके बीच, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट, ठीक है। सो सारे एम्प्लॉयज के बीच में जो रिलेशंस है उसको पूरा मैनेजमेंट करना। सो दैट इज चैम्बरलेन एंड कुहन थ्योरी। So this is the end of the today's video, and I would keep on sharing videos. I would give the details of the course that I would be taking free of cost for all of you. So do like, share and subscribe to my channel, okay, so that you keep on getting alerts, and also subscribe to my telegram group, क्योंकि telegram group में मैं सारे updates डालती हूँ अपनी videos और classes से related, okay। और मैंने telegram group अपना pin कर रखा है comments में, right, okay, great, bye।